آج ہم خدا کے کلام کو واز کے عنوان ابدی آسمان اور جہنم کے تحت بانٹنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ اس دنیا میں رہنے والے ہر ایک کے لیے جو وقت وہ اس زمین پر گزارتے ہیں وہ موقع کا وقت ہوتا ہے۔ آسمان اور جہنم کے درمیان دوراہے پر خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے اعمال کے موافق بدلہ دیں گے، اس بات پر انحصار کرتے ہوئے کہ اس زمین پر ہم نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ زندگی اس زمین پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں مادی دنیا میں ایک بار ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں تو ہم اپنی اصل دنیا میں لوٹ جائیں گے۔ جب ہم اس جگہ لوٹتے ہیں تو ہمارے مقدر آسمان یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، اس لیے ہمیں تمام لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو وقت ہم اس زمین پر گزارتے ہیں وہ واحد موقع ہے جب ہم آسمان کی بادشاہی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یسوع نے کہا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ جب وہ آسمان کی بادشاہی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں جہنم سے متعلقہ معاملہ پر بھی غور کرنا چاہیے۔ نجات پانے والے آسمان پر جائیں گے، لیکن جو توبہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں وہ جہنم میں ابدی سزا پائیں گے۔ آئیں ہم غور کریں کہ خدا نے اپنے فرزندوں کو ایسی دنیا سے بچایا اور ان کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے نئے عہد کی سچائی قائم کی۔ ہم ایک بار پھر غور کریں کہ باپ اور ماں کی محبت ہمارے لیے کتنی وسیع اور گہری ہے، اور باپ اور ماں کو کثرت سے شکر اور جلال دیتے ہوئے اس سبت کو مبارک دن بنائیں۔ ہم عبرانیوں کی کتاب باب 9 آیت 27 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، یہ خدا کا لا تبدیل کلام یعنی کتاب مقدس کا کلام ہے۔ ہر کوئی ایک بار مرے گا، یہ وہ ہے جو خدا نے پیشتر ہی مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آسمان یا جہنم کے معاملے میں فیصلہ ضرور آئے گا۔ ہمیں واضح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس زمین پر کیوں آئے تھے، یعنی ہم وہ آسمانی گنہگار ہیں جنہوں نے آسمان پر گناہ کیا تھا، زمین پر پھینک دیے گئے تھے، اور خدا نے ہمیں توبہ کے لیے ایک مختصر عرصہ بخشا ہے۔ تاہم ایسے لوگ ہیں جو اس زمین پر رہتے ہوئے اس سے بھی زیادہ برے کام کرتے ہیں اور کچھ دنیاوی خوشیوں اور لذتوں میں مگن ہو کر خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہماری زمینی زندگی کے اختتام کے بعد آنے والی دنیا میں سب کچھ ابدی ہے۔ آسمان ابدی بادشاہی ہے اور جہنم بھی ابدی ہے۔ تو پھر ان دو جہانوں میں سے ہمیں کس کا انتخاب کرنا چاہیے؟ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ ایک شخص کی موت کے بعد یقیناً اس کے اعمال کے موافق اس کا انصاف ہوگا۔ چونکہ آج کا عنوان ابدی آسمان اور جہنم ہے تو آئیں ہم پہلے جہنم کے حوالے سے ایک منظر دیکھتے ہیں۔ آئیں مکاشفہ باب 20 آیت 10 سے دیکھتے ہیں۔ باب 20 آیت 10، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس زمین پر رہتے ہوئے توبہ کا موقع اور وقت کھو دیتے ہیں۔ دنیا کے کچھ لوگ آسمان اور جہنم کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے۔ چونکہ یہ اندیکھے جہان ہیں، اس لیے وہ اس مفروضے میں رہتے ہیں کہ یہ جہان وجود نہیں رکھتے۔ اس عارضی اور دیکھی دنیا میں وہ سوچتے ہیں کہ میں کیسے دوسروں کی نسبت اعلیٰ رتبے سے لطف اندوز ہو کر زندگی گزار سکتا ہوں۔ یہ ان کی زندگی کا واحد مقصد بن جاتا ہے۔ نتیجتاً 60 سے 70 سال ایک پلک جھپکتے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
चूंकि वो ज़मीन पर तौबा करने के लिए भेजे गए थे, इसलिए अगर वो तौबा करने की बजाय हर रोज़ हर तरह के घटिया और बागी कामों में मुलविस हों, तो फिर उनके पास तौबा का मुंह का नहीं रहेगा। यीशु के अक्सर ये कहने की बजाय कि खुशी करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है, उन्होंने मुसलसल ताकीद की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। इसकी वजह यह है कि मुकाशफा बाब 20 में बयान की गई दुनिया जल्द उनके नज़दीक आ रही है। खुदा की मर्जी उन्हें अजाब की जगह यानी गंदहक से जलने वाली झील में दाखिल होने से रोकती थी। हम आयत 13 पर जाते हैं। बाब 20 आयत 13। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलमी अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के ऐमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमी अरवाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। यीशु मसीह के मुकाशफा में यूहन्ना रसूल ने जहन्नम के मुतालिक मंजर देखा और बिल्कुल वैसे ही दर्ज किया जैसे ये था। हम बाब 21 की तरफ जाते हैं। बाब 21 आयत 8। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुतप्रस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। 불과 유황으로 타는 못에 참여하리니 이것이 둘째 사망이라고 했습니다. उन्होंने लोगों की अक़साम भी बयान की जो जहन्नम में दाखिल होंगे। किताब मुक़द्दस हम पर उजागर करती है कि वहाँ के दुख आरज़ी नहीं होंगे, उनके अजाब की मुद्दत अबद तक रहेगी। बाब 19 आयत 19 की तरफ जाते हैं। फिर मैंने उस हैवान और ज़मीन के बादशाहों और उनकी फ़ौजों को उस घोड़े के सवार और उसकी फ़ौज से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा। और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की प्रस्तिश करने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है, और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए और सब परिंदे उनके गोशित से सैर हो गए। मुकाशफा में जहन्नम के मुतालिक कई मनाजिर दर्ज हैं। आए बाब 14 की तरफ जाते हैं। आयत 10 देखते हैं। वो खुदा के कहर की उस खालिस में को पिएगा जो उसके गज़ब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंदहक के अजाब में मुब्तला होगा। और उनके अजाब का धुआं अब्दौलाबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। इस तरह यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल को वो मनाजिर दिखाए जो आग और गंधक से जलने वाली झील में अब्दुल्लाबाद अजाब पाते रहेंगे। इसके अलावा 2000 साल पहले जब यीशु मसीह इस ज़मीन पर आए और इब्तिदाई कलीसिया के मुक़द्दिसीन को तालीम दी, तो उन्होंने ये सबक बख्शा कि उन्हें हरगिज़ जहन्नम में नहीं जाना चाहिए। आए मत्ती की इंजील पर एक नज़र डालते हैं। बाब 25 आयत 40। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सुलूक किया तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ए मिलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना न खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी न पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में न उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा न पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर न ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत न की।
옥에 갇히신 것을 보고 공양치 उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने इन सबसे छोटू में से किसी के साथ ये सलूक न किया तो मेरे साथ न किया। और ये हमेशा की सज़ा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की ज़िंदगी। यहाँ यीशु ने भी तमसील के ज़रिए अपने शागिर्दों से जहन्नम का मामला बयान किया। आएं इसकी तस्दीक बाब 23 से भी करते हैं। मती बाब 23 आयत 32। गरज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो, ऐ सानपो, ऐ अफाई के बच्चों, तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे। फरीसियों, फ़कीहों और यहूदियों ने जो उस वक्त के मजहबी रहनुमा थे, नए अहद की सच्चाई की मुखालफत की थी। यीशु ने उन्हें अफूई के बच्चों कहा और ऐलान किया कि वो जहन्नम की सज़ा से बच नहीं पाएंगे। आए मती बाब 18 की तरफ जाते हैं। हम बाब 18 आयत 5 से देखते हैं। और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डबो दिया जाए। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसूस है, क्योंकि ठोकरों का होना ज़रूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसूस है जिसके बायस से ठोकर लगे। बस अगर तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पाँव रखता हुआ तू हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखता हुआ तू आतिशी जहन्नम में डाला जाए। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। यहाँ भी यीशु जहन्नम के बारे में यही हकीकत बार बार बयान फरमा रहे हैं कि जुर्म करने वाले उज़ू को काट कर भी अगर आसमान में दाखिला मुमकिन हो तो वो बेहतर है, क्योंकि जहन्नम में हरगिज़ दाखिल नहीं होना चाहिए। आए हम मती बाब 13 के मंजर पर भी एक नज़र डालते हैं। किस किस्म के लोग जहन्नम में दाखिल होंगे। जहन्नम में दाखिल होने वाले लोगों की कई अक़साम हैं, लेकिन हम यीशु की तालीमात पर एक नज़र डालते हैं। आए बाब 13 आयत 41 देखते हैं। बाब 13 आयत 41। इब्न आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हों वो सुन ले। बदकार कहाँ जाएंगे। यीशु की तालीमात से हम तस्दीक कर सकते हैं कि बदकारों का मुक़द्दर अबदी जहन्नम है। आए मरकज़ बाब 9 में मज़कूर जहन्नम के हवाले से मंजर भी देखते हैं। मरकज़ बाब 9 आयत 41। और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ न खोएगा। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुंदर में फेंक दिया जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ होते जहन्नम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं। और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पाँव होते जहन्नम में डाला जाए।
اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال۔ کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی، کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا۔ پس متی اور مرقس کی اناجیل میں یسوع کی تعلیمات واضح کرتی ہیں کہ واقعی جہنم نامی جگہ ہے، اور وہ ہمیں سختی سے خبردار کرتے ہیں کہ ہرگز جہنم میں نہ جائیں۔ اسی لیے لوکا کی انجیل میں یسوع نے خاص طور پر جہنم کے عذاب کا ذکر کیا۔ ہم لوکا کی کتاب باب 16 کی طرف جاتے ہیں۔ آج میں کتاب مقدس سے پڑھ رہا ہوں اور براہ راست یسوع کے وسیلہ کہے گئے الفاظ کو پہنچا رہا ہوں۔ باب 16 آیت 19۔ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ لازر نے ایسی بد نصیب اور واقعی افسوسناک زندگی گزاری۔ زمین پر اس کی زندگی ختم ہونے کے بعد وہ روحانی زندگی میں داخل ہو گیا۔ منتقل ہونے کا مطلب حتمی طور پر جسمانی موت ہے۔ آیت 22 دیکھتے ہیں۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ موت کے بعد عدالت آتی ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں کہ امیر آدمی کی عدالت ہونے کے بعد وہ کہاں گیا۔ آیت 23۔ اس نے عالمی ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا، یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ یہ جہنم کے درد کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ صرف موت کے بعد اسے احساس ہوا کہ جہنم موجود ہے، اور اس نے اپنے خاندان کو اس عذاب کی جگہ پر آنے سے روکنے کے لیے مدد کی التجا کی۔ آیت 29۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ 2000 سال پہلے اس تمثیل کے ذریعے یسوع نے بیان کیا تھا کہ جہنم کا عذاب کتنا تکلیف دہ ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کتاب مقدس میں ان سب باتوں کو نہایت عمدہ انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے آسمانی باپ اور آسمانی ماں نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ جہنم بڑے عذاب کی جگہ ہے، اور یہ کہ ہمیں ہرگز وہاں نہیں جانا چاہیے۔ خدا کی نظر میں کیا چیز ممکنہ طور پر گنہگاروں کو بڑا یا خوبصورت بنا سکتی ہے؟ اس کے باوجود ہمارے لیے نجات پانے اور ہمارے تمام گناہوں کی معافی کے لیے جلالی راہ بخشتے ہوئے زندگی کی راہ کو کھولنے کے لیے خدا ایک بار پھر اس زمین پر آئے۔ یہ حقیقت کہ خدا نے ہمیں نئے عہد کے وسیلہ گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا فضل بخشا ہے، ہمارے لیے واقعی ایک قابل ذکر واقعہ ہے۔ جہنم میں سب کچھ یابدی درد، دکھ اور عذاب ہے۔ جب ہم غور کریں کہ جہنم ایسی جگہ ہے جہاں کوئی ایک لمحہ کے لیے، 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کے لیے بھی عذاب سے آزاد نہیں ہو سکتا، تو ہمیں اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے اور زیادہ وقف کرنا چاہیے تاکہ ہمارے باپ اور ماں کی کاوشیں رائیگاں نہ جائیں۔
창념하시고 इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हम किसी भी बुरे काम में मुलविस न हों, हमारे लिए ये ईमान रखना ज़रूरी है 정의의 길로 우리를 जो नेकी की राह पर हमारी रहनुमाई करने वाली उनकी तमाम तालीमात की पैरवी करे और उन पर अमल करे। 여러분과 제가 꼭 되셔야 되겠습니다. क्या खुदा नतीजा नहीं जानते? 아시지 않습니까? चूंकि खुदा पेशतर ही देखते हैं कि कौन से रास्ते बुरे नताइज की तरफ ले जाते हैं, इसलिए वो सरगर्मी से हमें रोकते हैं और बाज़ औक़ात ख़ास तौर पर हमें बाज़ चीज़ों से दूर रहने या बाज़ कामों को करने की हिदायत देते हैं। 이렇게 알려주신 उनकी तमाम तालीमात हम पर आसमान की अब्दी बादशाही के वजूद को उजागर करती हैं। 사실과 इसलिए आसमानी फ़र्जंदों को हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए कि उनके कलाम की पैरवी में नाकामी नागुज़ीर तौर पर अब्दी जहन्नम में ले जाएगी। चाहे हम कितनी ही बार लोगों को बताएं कि आसमान और जहन्नम है, पर वो इस पर यकीन नहीं करते। इसकी वजह यह है कि ये अनदेखा है और हकीकत में फ़ौरन महसूस नहीं किया जा सकता। 그러나 ताहम तमसील में अमीर आदमी की तरह ऐसा सिर्फ तब होता है जब लोग बराह रास्त उस लम्हे का तजुर्बा करते हैं कि वो पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त तक तौबा का तमाम मौके ज़ाये हो चुका होता है। तौबा का वक्त सिर्फ इस ज़मीन पर रहने के दौरान है। आसमान या जहन्नम की अब्दी बादशाही का फैसला आने के बाद इसे तब्दील नहीं किया जा सकता, ख्वाह हम 100 या 1000 बार तौबा करें। मौका सिर्फ इस ज़मीन पर ज़िंदा रहने तक मौजूद है। इसलिए मैं आप सबसे खुलूसी दिल से कहता हूँ कि खुदा के कलाम के लिए अपने आप को ज़्यादा वक्फ करें और ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो कलाम के मुताबिक हो। 부탁을 드리겠습니다. आए दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब बाब 1 आयत 7 से देखते हैं। और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। 능력의 천사들과 함께 और जो वो उनके साथ क्या करेंगे? खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। 어떤 결과가 있게 된다고요? 예, 형벌을 주실 것이다 하고 했습니다. खुदा ने इंसानों को जिस्म का खीमा पहनाकर इस ज़मीन पर तौबा का मौका बख्शा है। 이 땅에 회개할 수 있는 기회를 주신 것입니다. उन लोगों के लिए क्या मुंतज़िर है जो तौबा के वक्त के दौरान खुदा बाप और खुदा माँ के वजूद के बारे में न जानते हुए और उन्हें दी गई खुशखबरी को न मानते हुए तौबा के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 산 이와 같은 모든 자들에게는 무엇이 있게 된다고요? ये कहा गया है कि उन्हें सज़ा का सामना करना पड़ेगा। सज़ा की जगह कहाँ होगी? वो नागुज़ीर तौर पर अब्दी जहन्नम में अब्दुल-आबाद तक अजाब में रहेंगे। ये वो हैं जो खुदा को नहीं जानते और मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते। खुदा बनी नूह इंसान को मजबूर करके उन्हें ज़ेर करने की कोशिश नहीं करते। खुदा हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने को कहते हैं क्योंकि वो हमसे चाहते हैं कि हम उन तमाम गुनाहों और तमाम खुताओं का मुकम्मल एहसास करें जो हमने आसमान पर किए थे और पुख्ता एतिकाद रखें कि हम हरगिज़ दोबारा उन गुनाहों में मुलविस नहीं होंगे। इस दुनिया के लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि 3 सिमती और देखा जहान ही सब कुछ है, इसलिए वो इससे बाहर किसी और जहान से नावाकिफ़ हैं। 그 이상의 다른 세계가 없는 것으로 알고 있습니다. ताहम क्या हमने नहीं सीखा कि इंसान जिस्म और रूह दोनों का मुरकब है? अगर मादी ज़िंदगी जो हम अब गुजार रहे हैं वजूद रखती है, तो रूहानी दुनिया का वजूद भी होना चाहिए जो रूहों का मस्कन है। उस दुनिया में वो अब्दुल-आबाद दुख उठाएंगे, अजाब में मुब्तला होंगे और अजियत में रहेंगे। ये जानते हुए खुदा ने बनी आदम को उस राह से बचने का मौका बख्शा है। फिर भी इस ज़मीन पर फेंके जाने के बावजूद वो तकब्बुर और फ़ख्र को बरकरार रखते हुए गुनाह करना जारी रखते हैं, ये ऐलान करते हुए कि मैं बेहतरीन हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। उनके पास तौबा का वक्त नहीं है क्योंकि वो दुनियावी लज़्ज़तों का ताक़ुब कर रहे हैं और उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इस वजह से खुदा खुद जिस्म का खीमा पहनकर इस ज़मीन पर आए ताकि हमें आसमान पर वापस जाने की राह और अपनी पहली आमद और दूसरी आमद पर गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करने की राह सिखाएं। क्या ये राह ज़िंदगी की राह नहीं है? इसीलिए जैसा कि मेकाह बाब 4 और यशायाह बाब 2 में लिखा है कि वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे।
अगर खुदा फौरन हमारे गुनाहों की सज़ा देते तो हमारा मुकद्दस जहन्नम होता। ताहम उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया है, यानी इस ज़मीन पर उन्होंने हमें एक और मौक़ा बख्शा है। तमाम बनी नो इंसान जो इस ज़मीन पर आए हैं किसी और चीज़ की मोहताज नहीं हैं। तौबा के लिए वक्फ ज़िंदगी गुजारना सबसे अहम और ज़रूरी है। ऐसी ज़िंदगी गुजारते हुए आए हम वो बने जो बाप और माँ को जलाल दे सकें। जैसा कि मुकाशफा बाब 21 में बयान किया गया है, आसमान की बादशाही ऐसी जगह है जहाँ मौत, दर्द, दुख या रंज नहीं है। क्या किताब मुक़द्दस मुख्तलिफ आयात के ज़रिए हम पर उजागर नहीं करती कि एक फिरदूस है जहाँ हम खुशी से रह सकते हैं और हर रोज़ खुदा की पैदा करदा नई खुशियों का तजुर्बा कर सकते हैं? आज मैं आप सबको खुलूसी दिल से ताकीद करता हूँ कि नए अहद की सच्चाई की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें ताकि एक भी शख्स पीछे न रह जाए और हम सब एक साथ आसमान की जलाली बादशाही में दाखिल हों। जब खुदा कहते हैं किताब मुक़द्दस में न कुछ बढ़ाओ न कुछ निकालो, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पहले ही किताब मुक़द्दस में आसमान की बादशाही को ले जाने वाले तमाम रास्तों को शामिल किया है? ताहम आज हमारे गिर्द कई कलीसियाएं किताब मुक़द्दस में मौजूद बहुत सी चीज़ों को ख़त्म करते हुए किताब मुक़द्दस में न मिलने वाले अमाल को बढ़ा रही हैं। उनका रास्ता जहन्नम को जाता है, न कि आसमान को। कड़वे दानों की तमसील में किसके बारे में कहा गया था कि ये किसका काम है? यीशु ने फ़ौरन पहचान लिया कि ये किसने किया था। मालिक ने फ़ौरन पहचान लिया और कहा कि ये शैतान का काम है। ज़ाहरी तौर पर ऐसा लगता है जैसे वो खुदा पर ईमान रखते हैं, लेकिन बातनी तौर पर वो नहीं रखते। क्या यही वजह नहीं है कि किताब मुक़द्दस उन्हें भीड़ों के भैंस में भेड़ियों के तौर पर बयान करती है? चूँकि वो हमारी रूहों को फाड़ने वाले भेड़िए हैं, इसलिए हमें हर एक रूह पर रहम करना चाहिए। मुझे जल्द उन्हें जगाना है। एक रूह को भी दुरुस्त तौर पर बचाने के लिए आपको और मुझे इस हकीकत पसंदाना पैगाम को सही तौर पर पहुंचाने के काबिल होना चाहिए। यीशु ने कहा कि वो आसमान से इस ज़मीन पर खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आए हैं। इसलिए हमें भी वही नेक इरादा रखना चाहिए। मैं खुलूसी दिल से उम्मीद करता हूँ कि आप में से हर एक खुदा की नज़र में तौबा के बहुत से खूबसूरत काम छोड़ेगा। ये उम्मीद करते हुए कि आपने आज के कलाम से ज़्यादा फजल पाया है, मैं इस वाज को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।